إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. رواه الإمام مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أولى أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق علیہ. یہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ مشہور کتاب ہے جو مدارس اسلامیہ کا نصاب ہے، ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے اور منتہی درجات میں بھی پڑھائی جاتی ہے. ہمارے ہندوستان میں عربی دوم سوم کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے حدیث کی پہلی کتاب کی حیثیت سے، اور وہی کتاب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں گریجویشن کے سال میں مدنی عالموں کو پڑھائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب جتنی مبتدی طالب علم کے لیے مفید ہے اتنا ہی وہ منتہی طالب علموں کے لیے بھی، ہائر کلاسز کے لیے بھی وہ اتنے ہی مفید ہے جتنے کہ وہ بگنرز کے لیے. میری مراد ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. یہ تالیف ہے امام علامہ احمد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عسقلان کی طرف نسبت ہے. یہ فلسطین کا ایک مشہور اور بڑا شہر تھا جو مدینۃ القدس سے پچھم جانب 65 کلومیٹر پر آج کے نقشے پر واقع ہے. لیکن ان کے آباء و اجداد ابن حجر کی پیدائش سے پہلے مصر چلے آئے تھے، اس لیے لکھا جاتا ہے ابن حجر العسقلانی المصری. گویا پیدائش ان کی مصر میں ہوئی 23 شعبان 773 ہجری 773 ہجری 23 شعبان، اور انتقال فرمایا انہوں نے 25 ذی الحجہ 852 ہجری. یہ اپنے دور کے یگانہ روزگار ہستیوں میں سے تھے. ان کا لقب تھا امیر المومنین فی الحدیث، جو کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا اہل حدیث نے دیا تھا. امیر المومنین فی الحدیث وہ خطاب تقریباً 600 سالوں کے بعد یا اس سے زیادہ سالوں کے بعد یہ لقب ملا جس امام کو، جس محدث کو وہ احمد ابن علی ابن محمد ابن علی، اللہ اکبر، ابن محمود ابن احمد ابن حجر ابن احمد العسقلانی رحمت اللہ علیہ کو ملا. ان کا ایک لقب اور ہے خاتمۃ المحدثین. سمجھو کہ اینڈنگ آف محدثین ہے. اتنی بڑی شخصیت تھی. یوں تو کئی فنون کے ماہر تھے لیکن خاص کر کے فن حدیث میں
فن رجال میں راویوں کے حالات کو جاننے میں صحیح اور ضعیف میں بڑا ید طولہ حاصل تھا. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. ان کی معروف کتاب، مشہور زمانہ کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری، جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسی کتاب لکھی نہیں گئی بخاری شریف کی شرح میں. اور بھی کتابیں لکھی ہے، عام عوام کو اس سے مطلب نہیں، لیکن مشہور کتاب بتایا میں نے آپ کو کہ یہ ہے. صحابہ کرام کی حیات کے اوپر بھی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کتاب لکھی، تمام صحابہ اور صحابیات کا اس میں سوانح حیات لکھا مختصر میں. اس کے بعد راویوں کی صحاح ستہ، کتب ستہ کے روات جو ہیں جتنے راوی ہیں ان کی سوانح حیات صحیح ہے، غیر صحیح ہے، ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے. اس کے اوپر تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب نام کی کتاب لکھی. سب مجلدات ہیں بڑے بڑے جلدوں میں. بخاری شریف فتح الباری 15 جلدوں میں. اس طرح سے حدیث کے قواعد پر کتاب لکھی نخبۃ الفکر، پھر اس کی شرح خود لکھی نزہۃ النظر. اور ایک کتاب لکھی فقہی مسائل کی دلیلوں کے سلسلے میں. پانی پاک ہے تو کیا دلیل، وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی کیا دلیل، موزے پر مسح کرنا ہے کیا مدت ہے اس کی کیا دلیل. تو اس طریقے سے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، احکام سے مراد ہے الاحکام الفقہیہ، فقہی احکام اور مسائل کی دلیلوں پر مشتمل ایک کتاب خوبصورت سی لکھی جس کا نام رکھا بلوغ المرام، مقصد کو پہنچنا. اگر آپ فقہی احکام اور مسائل کی دلیلوں کے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. اور خود انہوں نے لکھا کہ جس طریقے سے یہ کتاب مبتدی طالب علموں کے لیے ہے اسی طریقے سے یہ منتہی طالب علموں کے لیے. وہ حدیث ہے تو موقوف ہے کہ مرفوع ہے، منقطع ہے کہ متصل ہے، دوسرے طرق میں کیا الفاظ آئے ہیں. حافظ ابن حجر نے انتہائی اختصار کے ساتھ حدیث کے اوپر جو حکم لگایا ہے یہ بہت کمال کی چیز ہے. اور اس کے لیے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی دیکھنا چاہتے کہ حافظ ابن حجر نے کیا حکم لگایا ہے حدیث پر. تو دیکھو بھائی بلوغ المرام اٹھاؤ، دیکھو دیکھو کیا لکھا ہے حافظ صاحب نے، حافظ ابن حجر نے کیا حکم لگایا. اتنی اہم کتاب ہے یہ. اور ماشاء اللہ بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، بڑے بڑے علماء نے شرح لکھی ہے. سمجھا کہ ہندوستان میں بھی ہمارے سید نواب صدیق حسن خان قنوجی اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے عربی اور فارسی میں 2 شرحیں لکھی ہیں. ان سے پہلے علامہ اسماعیل صنعانی، محمد بن اسماعیل صنعانی نے کتاب ان کی سبل السلام کے نام سے لکھی ہے. اور ادھر کے علماء نے تو سعودی علماء نے خوب خوب کتابیں لکھی ہے. عبداللہ بن خزیر ہے، شیخ عبداللہ بن خزیر رئیس ہے تو کبار العلماء ہیں، تقریباً 2650 صفحات کے اوپر یہ 100-150 صفحے کی کتاب کی تشریح کی ہے. انہوں نے مستقل کئی سالوں تک کتاب کو پڑھایا ہے. علامہ ابن عثیمین جیسا علامہ اس نے بھی 6 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کی شرح لکھی ہے. ایک دو عالم نے نہیں، بہت سے علماء نے. یہ کتاب اتنی پاپولر ہے کہ بڑے علماء کی مجالس میں پڑھائی جاتی ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ ہوتے ہیں، عبارت ہوتی ہے اور اس کی علماء اپنے انداز سے شرح کرتے ہیں. ہمارے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی مختصر سی شرح لکھی اتحاف الکرام کے نام سے، مختصر سی شرح لکھی. کچھ الفاظ کے معنی لکھے، 1-2 سطر میں معنی مطلب بتایا اور آگے بڑھے. چونکہ یہاں پر کچھ اس طرح کی مختصر سی چیز نہیں تھی، وہ اس لیے کہ جو مبتدی طالب علموں کو مدرس کلاس میں پڑھاتا ہے تو اس کو ذرا مختصر سا معنی مطلب 1-8 سطر کا چاہیے، لیکن اس سے پوری تشفی آپ کو نہیں ہوگی اس شرح سے. یہ اتحاف الکرام سمجھا کہ نہیں. اسی کا شاید ترجمہ وغیرہ کیا ہے پاکستانیوں نے یا اس پر کچھ حاشیہ لگایا ہے حافظ صلاح الدین یوسف نے، وہ جو ہمارے یہاں درس میں ہوتی ہے بلوغ المرام علماء پڑھاتے ہیں. سمجھا کہ نہیں. بہرحال تو ہم نے چاہا کہ اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھے. ایکچولی ہم جامع ام القری کی دعوت پر آئے ہیں اور یہ درس وہیں پر ہونا تھا، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ درس آپ تک منتقل ہو گیا. اللہ کی مرضی تھی. اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں. ارادہ کیا تھا میں نے کہ اس میں سے کتاب الصیام پڑھیں گے موقع کی مناسبت سے، لیکن عام طریقہ سے ریاض الصالحین سے یا بلوغ المرام سے
جو मुदर्रिस होते हैं, यहाँ के अइम्मा होते हैं, वो आम तरीका से असर की बाद 2 हदीसें 3 हदीसें पढ़ करके आप हजरात को सुनाते ही रहते हैं। तो जो हमारे और मस्जिद के दरमियान जो मीडिएटर का काम कर रहे थे जनाब शम्स साहब, उन्होंने उस दर्स को वहां से उठाकर यहाँ आपके पास रखा और इमाम मस्जिद जनाब मौलाना साजिद हुसैन नदवी साहब से डिस्कस किया। तो इन्होंने कहा कि मसाइल रमजान के ताल्लुक से तो होते ही रहते हैं और हम लोग बताते ही रहते हैं। शेख को कहिए कि इस किताब की आखिरी किताब, बुलुगुल मराम की आखिरी किताब, आखिरी चैप्टर, किताब कहते चैप्टर को, और उसके अंदर अलग अलग बाब होते हैं, समझा कि नहीं। तो इस तरीका से किताबुल तहारत से इमाम इब्ने हजर ने अपनी किताब बुलुगुल मराम का आगाज किया है, किताबुल तहारत, फिर बाबुल मियाँ पानी का बाब, इस्तिंजा का बाब, वजू का बाब, तयम्मुम का बाब, गुस्ल का बाब, हैज का बाब, ये वो सब करते कराते आगे किताबुल सलात पर, समझा ना। इस तरीके से ये किताब चली है बड़ी खूबसूरती के साथ। तमाम अरकान इस्लाम को जिक्र किया है। उसके बाद किताबुल बुयू लाए हैं, फिर उसके बाद किताबुल निकाह है, किताबुल तलाक है, किताबुल रज़ात है, किताबुल नफकात है, किताबुल हजानत है, किताबुल जनायात है, किताबुल दियात है। इस तरीके से होते हवाते आखिरी चैप्टर जो इस किताब का है वो किताबुल जामे, अल जामे, किताबुल जामे। तो मौलाना की ख्वाहिश ये हुई कि किताबुल जामे का हम दर्स दें। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उसी किताबुल जामे में पहला बाब इमाम इब्ने हजर ने कायम किया है, बाबुल अदब। इंसान को मुअद्दब होना चाहिए, इस्लामी आदाब से आरास्ता और पैरास्ता होना चाहिए। किताबुल जामे में कई अबवाब है, 5-6 अबवाब हैं। उसमें का पहला बाब जो है वो है किताबुल अदब। जामे कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी खास एक उन्वान के ताल्लुक से नहीं है। अब तक जितने चैप्टर्स थे वो एक मौजू पर थे। तहारत ही के मौजू पर उसमें हदीसें आती थी, नमाज की हदीसें नहीं आ सकती थी। किताबुल सलात में सिर्फ नमाज के मसाइल आएंगे, किताबुल ज़कात में ज़कात के मसाइल आएंगे। ये किताबुल जामे है, इसके अंदर किसी एक चैप्टर की बात नहीं होगी, मुख्तलिफ चीजें आएंगी, मुख्तलिफ चीजें आएंगी। ये किताबुल जामे यानी ये किताब, ये चैप्टर जामे है, मुख्तलिफ हदीसों को मुख्तलिफ बाबों से ताल्लुक रखने वाली, मुख्तलिफ चैप्टर से ताल्लुक रखने वाली हदीसों का एक खूबसूरत मजमुआ उन्होंने तरतीब दिया है किताबुल जामे के नाम से। अब मैं समझता हूं कि इतनी गुफ्तगू से आप असल किताब के मुअल्लिफ और जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इससे आप एक हद तक करीब हो चुके होंगे। चलिए, अब जो पहली हदीस हमने पढ़ी है वो हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो अलल इतलाक तमाम सहाबा और सहाबियात में सबसे ज्यादा रवायत हदीस बयान करने के एतबार से अव्वल दर्जे पर है। और कमाल ये भी है कि सिर्फ 2-2.5 साल की मुद्दत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिली है। सन 7 हिजरी में मुसलमान हो रहे हैं और 11वीं हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल हो रहा है। गोया कोई पौने 3 साल की मुद्दत है। और इसके अंदर इस अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी हदीसों को याद करने की कि तमाम सहाबा जो मक्के से आ रहे थे आपके साथ, उन सब से फायक हो गए, समझा के। इसलिए हाफिज हदीस जनाब अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्ने सखर अद-दौसी अल-यमनी, जिनका लक़ब है अबू हुरैरा, दिल्ली से मोहब्बत ही आस्तीन में रखा करते थे, इसलिए अबू हुरैरा। इससे मालूम हुआ कि आदमी अपने वस्फ के जरिए भी, अपनी किसी सिफत के जरिए भी कुन्नियत ले सकता है। जरूरी नहीं है कि कुन्नियत के लिए आप किसी के बाप हो। अबुल मुजाहिद, अबुल महासिन, कोई बिल्ली पाले हुआ है, बिल्ली से बड़ी मोहब्बत करता है तो नाम हो गया उसका अबू हुरैरा, बिल्ली का बाप, बिल्ली से मोहब्बत रखता है, समझा कि नहीं। अब कोई शेरवानी हर दर पहने रहे, गर्मी हो सर्दी हो, जब देखो शेरवानी में है, तो अब उसको अब आप कह दीजिए अगर लक़ब, अगर उसको बुरा ना लगे तो अबू शेरवानी, समझा कि नहीं। तो सिफत भी कुन्नियत बन सकती है। ये बिल्ली पालना, बिल्ली से मोहब्बत करना उनकी एक सिफत थी, उसको कुन्नियत बना दिया, हुरैरा का बाप, छोटी सी बिल्ली का बाप। चलिए, एक फायदा ये भी हो गया नाम के अंदर। तो ये रवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान पर 6 हक है। पहली बात तो यह कि मुसलमान किसको कहते हैं, मुख्तसर में कोई तारीफ करेगा? बलीगुद्दीन, मुसलमान किसको कहते हैं मुख्तसर में? अगर कहा जाए कि हु इज मुस्लिम, शम्स साहब,
मुसलमान उसको कहते हैं जो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे और कुफ्र का कोई काम न करे। अल मुस्लिम मन शहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व लम याति बिमुकफ्फिरिन, कोई कुफरिया काम न करे। मुख्तसर में अगर कहें कि जो अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत की गवाही देता हो और कोई कुफरिया काम न करता हो, वो है मुस्लिम। तो ऐसे मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक है। ये 6 हक गिनती के लिए, हस्र के लिए नहीं है कि लिमिट नहीं है, इतने ही हक है। माशाअल्लाह हुकूक बहुत है मुसलमानों पर, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमानों पर बहुत ज्यादा हुकूक है, लेकिन इन 6 को 6 कह करके बताया गया, इस पर फोकस कर लिया कि ये बहुत अहम हुकूक है, इनका ख्याल होना चाहिए या इनका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए सित्तुन आया, 6 है। बाद रवायत में खमसुन है, बाद में सित्तुन है, लेकिन ये याद रखिए कि 5 या 6 या कहीं भी कोई चीज हदीस में आती है 3, 4 ऐसा करके, तो वो गिनती अदद के लिए, हस्र के लिए, लिमिटेशन के लिए नहीं आती। ये लिमिटेशन नहीं बताता है, बल्कि उस चीजों की अहमियत को बताने के लिए उसकी काउंटिंग कर दी जाती है, ताकि आदमी का जरा सा उस पर दिमाग लगे कि वो क्या है भाई, बतौर खास जिसको 6 हक बताया गया वो क्या है। अच्छा, हुकूक की अदायगी से फायदा क्या होता है जानते हैं? हक की अदायगी से फायदा क्या होता है? उखुवत का जो रिश्ता है मुसलमानों के दरमियान, ये रिश्ता मजबूत होता है। आपने मेरा हक अदा किया, हमने आपका हक अदा किया, तो उखुवत का रिश्ता मजबूत होता है, मोहब्बत और उल्फत की जड़ें मजबूत होती, समझा कि नहीं? तो वो हक बयान करते हैं। ये अदब, किताबुल अदब के अंदर, बाबुल अदब के अंदर पहली हदीस। बंदे के, देखिए एक बात कहना था, मिस कर गए हम। बाबुल अदब में अदब अल्लाह के साथ भी बंदे को करना चाहिए, अब बंदे का बंदे के साथ भी अदब होना चाहिए। अल्लाह के साथ सबसे ज्यादा बंदे को मुअद्दब होना चाहिए। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा अदब और एहतराम हमारे लिए किसका जरूरी है? हमारे अल्लाह का। और अल्लाह के साथ अदब क्या है हमारा? कि हम उसकी ताजीम करें, उसकी शरीयत की ताजीम करें, अवामिर को बचा लाएं, जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उन कामों से हम रुक जाएं, हलाल और हराम जो अल्लाह ने किया उनका लिहाज रखें, और वो अदब भी मलहूज रखें जो दूसरों के साथ रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दूसरे के सामने हम बेपर्दा नहीं हो सकते, बेसतर नहीं हो सकते, तो अल्लाह ज्यादा लायक है इस बात के कि उसके सामने हम बेसतर न हो। जरूरत के वक्त आदमी बेसतरी करे, बैतुल खला में जाए तो बेसतर हो, बीवी के पास जाए तो बेसतर हो, लेकिन यह है कि साहब बिस्तर पर अकेले सोए हुए हैं, कमरा बंद है, पर्दा लटका हुआ है, पूरे मादरजात नंगे बन करके, नंगे धरंगे बन करके सोए हुए, कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह अहक्कु अन युस्तहया मिन, अल्लाह ज्यादा लायक है, उसे शर्म करो, थोड़ा अदब करो। क्या जिस्म को इस तरह से खोल के अपने रूम में अकेले पड़े हुए हो? तो ये चीजें होती हैं अल्लाह के साथ। बंदे के साथ बंदे का अदब क्या है कि आप कुछ अपने आप को इस अंदाज में प्रपोज कीजिए कि लोग आपसे मुताअस्सिर हों, आपकी तारीफ करें, आपके अखलाक की तारीफ करें, आपके रहन सहन की, लिबास पोशाक की, आपके चलने फिरने की तारीफ करें। ऐसा काम जिससे लोगों के ऊपर आपका असर अच्छा पड़ता हो, लोग आपकी खूबियां बयान करते हो, आपकी तारीफ करते हो। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसके आपसे आपके अखलाक, आपके किरदार पर जिसकी ज़र्ब पड़ती हो। वो काम अगर आप नहीं करते हैं तो ये है कि आप माशाअल्लाह मुअद्दब इंसान हैं और अदब का मुजाहिरा कर रहे हैं। चलिए, जब अदब समझ गए आप कि अल्लाह के साथ और बंदे के साथ अदब का क्या मतलब है, तो यहां पर बंदे के हुकूक को बयान किया जा रहा है ताकि उल्फत और मोहब्बत मजबूत हो हमारे दरमियान। तो पहला हक बताया गया कि इज़ा लकीतहु फसल्लिम अलैहि, एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर यह कि जब वो उससे मुलाकात करे तो उसको सलाम करे। सलाम से उल्फत और मोहब्बत कायम होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बुखारी शरीफ की रवायत है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है, अय्युल इस्लाम खैर, इस्लाम की कौन सी सिफत अच्छी है? तो आपने कहा तुतिअमु त्ताआम व तक़रउ सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ, लोगों को खाना खिलाना और पहचान का आदमी हो कि गैर पहचान का हो उसको सलाम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है कि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, अगर जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो ईमान लाओ।
वला तुमिनु हत्ता तहाबु, और मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे से मोहब्बत न करो। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, क्या ऐसी चीज न बताएं कि अगर तुम करने लगो तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। क़ाला अफ़शु सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को रिवाज दो, फैलाओ। अभी एक सलाम का चैप्टर है रियाजुस सालिहीन, अगर पढ़ा गया होगा या पढ़ेंगे तो आपके सामने उसकी सारी तफसील आएगी। इसमें ज़ाब्ता क्या है, क्राइटेरिया क्या है, अखलाकी तौर पर कहा गया है कि छोटा बड़े को सलाम करे। गौर से सुनते रहिएगा, छोटा बड़े को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, सवारी पर होने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, कलील कसीर पर सलाम करे। ये एक ज़ाब्ता है, ठीक है। चलिए हम इधर से चल रहे, उधर से आप आ रहे हैं, इधर से आलिम जा रहा है, उधर से गैर आलिम आ रहा है, तो आलिम के एहतराम में दोनों चल ही रहा है और दोनों सिंगल पर्सन है, कोई कलील नहीं है, कोई कसीर नहीं है, दोनों एक एक ही है। रास्ते में मुलाकात हो गई तो किसको किस पर सलाम करना चाहिए? जल्दी जवाब दीजिए, शेयर कीजिए हमसे। आलिम को सलाम करना चाहिए। अल्लाह खुश रखे आपको। क्यों? आलिम के एहतराम की खातिर, ठीक है। लेकिन अगर उसने सलाम नहीं किया जी, तो आलिम साहब को चाहिए कि वही सलाम करें। वो क्यों सुन्नत से महरूम हो रहे हैं? ये हदीस कह रही है इज़ा लक़ीतुम, जब मुलाकात करो तो सलाम करो। ये हदीस बता रही है कि कोई क्राइटेरिया नहीं, जो जिसको पाए सलाम करे। लेकिन क्राइटेरिया हदीस में है कि छोटा बड़े से करे, चलने वाला बैठने वाले से करे, उसको अफजलियत पर महमूल कीजिए कि अफजल वही है जो हदीस में बयान किया गया। लेकिन अगर कोई बंदा अफजल नहीं कर रहा है, वो जो गुजर रहा है सलाम नहीं कर रहा है, वो अकेला था, हम दो आदमी से जा रहे थे, उसको सलाम करना था, नहीं किया, तो हम सुन्नत से क्यों महरूम हो? हम ये मुसलमान का हक जो हमारे ऊपर है बहैसियत मुसलमान के, हम क्यों नहीं इस हक को अदा करें और हम सलाम करें? ठीक है, तो आप उसको सलाम कीजिए। अस्सलामु अलैकुम कहते हैं 10 नेकी, व रहमतुल्लाह कहते हैं 20 नेकी, व बरकातहू कहते हैं 30 नेकी आपको मिल गई। चलिए, ये सलाम करना इस्लामी शरीयत के कानून के एतबार से सुन्नत है। अगर आप न करें, चले जाएं, दोनों एक दूसरे के सामने से गुजर जाएं, सलाम न करें तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा लगे कि भाई ये दोनों गुजरते हैं, कभी एक दूसरे को सलाम नहीं करते, 6 महीना हो गया हमने इन दोनों को देखा है सलाम नहीं करते, तब ऐसी सूरत में उलमा ने कहा कि सलाम करना वाजिब होगा। वो इसलिए कि हदीस है कि ला यहिल्लु लिलमुमिन अन यहजुर अखाहु फौqa सलास, एक मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा तर्क ताल्लुक करे। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर ये तर्क ताल्लुक जो 3 दिन से ज्यादा हराम और नाजायज है, और आप लोग हफ्तों 10 दिन से एक दूसरे के सामने आते जाते हैं और सलाम नहीं करते, तो उसी सूरत में ये तर्क ताल्लुक का जो हराम अमल आपके दरमियान जारी है, इसको खत्म करने के लिए सलाम करना वाजिब हो जाएगा। और जो पहले सलाम करेगा वो अल्लाह के नजदीक अल्लाह का महबूब बंदा होगा। बहरहाल सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना फर्ज है। जवाब देना, जमहूर उम्मत इस्लामिया ने कहा कि जवाब देना फर्ज है। जितना पर मुसल्लिम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो आप पर व अलैकुमुस्सलाम कहना कंपलसरी है। अगर आप व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह देते हैं तो ये अच्छे तरीके से जवाब देना हुआ। कुरान कहता है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, अगर तुम पर कोई सलाम करे तो तुम वैसे ही कलेमा दोहराओ कम से कम, और बेहतर तो यह है कि अच्छे तरीके से उसका जवाब दो। तो अस्सलामु अलैकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम से देना कंपलसरी है। व रहमतुल्लाह व बरकातहू अगर आप बढ़ाते हैं तो ये फजल है, एहसान है और सवाब भी आपको मिल रहा है। और अगर उसी ने किया है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू 30 नेकी की खातिर, तो आप भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब कोई अपनी तरफ से बढ़ा दे, वो मगफिरतहू व रिज़वानहू वल जन्नतु मकामहू और क्या और क्या और क्या, तो ये उसके अपने बाप दादा के घर की शरीयत है। वो बरकातहू के आगे कुछ बोलने का नहीं। चलिए सर, ये एक सलाम का ज़ाब्ता हुआ। सलाम, अब सवाल ये है, 2 बात और बताते चले, गैर मुस्लिम को सलाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सीधा जवाब उसका कि नहीं करना चाहिए। हदीस है, आएगी इसी बाब में ये हदीस, ला तब्दउल यहूद व नसरा बिस्सलाम,
यहूद और नसारा को सलाम तुम पहले न करो, अगर वो सलाम करें तो तुम उनको वालेकुम कहो, ठीक है। चुनांचे यहूदी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, मौत हो तुम पर। तो आपने कहा अलैका अलैका। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वहां मौजूद थी, कहा अलैका अस्सलाम वल लाना, एक लफ्ज और बढ़ा दिया। तो कहा आयशा इरफिकी, नरमी करो नरमी करो, अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है। या रसूलल्लाह आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? कहा जब ही तो मैंने कहा अस्सलामु अलैका का जवाब अलैका से दिया। तो अगर मुशरिक सलाम करे और कहे अस्सलामु अलैका, या कोई ऐसा लफ्ज बोले कि वो लफ्ज वाज़े नहीं हुआ, अस्सलामो बोला कि अस्सलामो बोला, क्लियर नहीं हुआ, तो आप जवाब में कहिएगा वा अलैका या वा अलैकुम, ठीक है। लेकिन सवाल यहां होता है कि बहुत साफ सुथरे लफ्ज में आपको कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कोई मुशरिक आपसे ये कहे अस्सलामु अलैकुम साफ साफ, तब क्या करना चाहिए? व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यही कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, अगर तुमको कोई सलाम करता फहय्यु बिअहसन मिनहा, उससे बेहतर जवाब दो, या कम से कम वो जुमला तो जरूर लौटाओ जो उसने किया है। यहूद चूंकि यहूद मलऊन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो अस्सामो कहते थे, तो तुम तो ऐसा अस्सामो कहे या गैर वाज़े लफ्ज कहे तो आप अलैकुम कह दीजिए। लेकिन अगर क्लियरली वो कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो आप भी कहिए व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहो तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, अपने अखलाक को अपने फजल को पेश कीजिए उसके ऊपर, समझाइए। कुछ लोग है कहेंगे सलामुन अलैकुम, कुछ कहते हैं सलामुन अलैका, कोई कहते अस्सलामु अलैका, कोई कहते अस्सलामु अलैकुम। सबसे अच्छी ताबीर है अस्सलामु अलैकुम, अलिफ लाम के साथ, अलैकुम के साथ। कुरान ने कहा वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, अलिफ लाम के साथ, और अलैकुम अगर लाते हैं तो एहतराम के लिए, या जो फरिश्ते होंगे उनके ऊपर भी सलामती हो जाएगी। अब एक बात और चलते चलते कह दे मसले की है, औरतों को सलाम करना चाहिए कि नहीं, और औरतें आपको सलाम करें तो जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो माँ बहन हो, बेटी हो, महरमात हो, तो कोई मसला ही नहीं, इनको तो रहने दीजिए। अजनबिया है, आप जा रहे हैं और अजनबी औरतों का गोल आ रहा है, अगर आपने कह दिया अस्सलामु अलैकुम, फितने का कोई खौफ नहीं है, या उधर से एक औरत है, इधर से 10-20 मर्द जा रहे हैं, उस औरत ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, फितने का खौफ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जमात से गुजरे, अबू दाऊद में रवायत है, तो आपने कहा अस्सलामु अलैकुम। और हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा आई तो उन्होंने कहा। इसी तरीके से हजरत सहल बिन साद कहते हैं कि जुमा के दिन हम लोग जुमा की नमाज पढ़ के एक बुढ़िया के पास जाया करते थे, जो अपने तालाब के किनारे में चुकंदर उगाया करती थी। अब वो हर दिन जुमा के दिन चुकंदर और जौ के आटे को सान करके हम लोगों के लिए खाना बनाती थी। हम लोग जवान सब थे, जाते थे उस बुढ़िया के यहाँ, कहते थे अस्सलामु अलैकुम। अब वो हर दिन खिलाया करती थी, फिर हम लोग अगले जुमा का इंतजार करते थे कि फिर अगले जुमा बुढ़िया के यहाँ दावत खाना है, समझा के। लेकिन अगर अकेली जवान लड़की आ रही है और अकेले जवान मर्द इधर से जा रहा है या वो लड़की जा रही है, तो आपके लिए भी जायज नहीं है कि अस्सलामु अलैकुम कहिए, उसके लिए भी जायज नहीं कि अस्सलामु अलैकुम। अगर वो अस्सलामु अलैकुम कहती है वो जवाब की मुस्तहिक नहीं होगी, और अगर आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो जी में जवाब दे दे तो दे दे, उसकी मर्जी है, वरना वो जवाब नहीं देगी, क्योंकि फितने का डर है। लेकिन शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर चलते हुए सड़क पर मामला हो, खलवत ना हो, चेहरे पे नजर ना पड़े, चेहरा झुका करके अगर सलाम कर दे नॉर्मली, और आदमी चलता चला जाए, वो चलती चली आगे तो करे। लेकिन अक्सर उलमा ने कहा कि सिंगल पर्सन, सिंगल वोमेन को औरत को, जवान लड़की को सलाम ना करे। अगर जमात में हो तो जमात में कर सकती है, वल्लाहु आलम। ये हुआ पहला हक। दूसरा हक आइए देखिए, वइज़ा दआका फअजिबहु, जब वो तुमको दावत दे तो दावत कबूल करो।
कहाँ की दावत? वलीमे की दावत। उलमा ने कहा वलीमे की दावत, शादी के बाद जो खाना होता है वो वलीमा। अकीके की दावत में भी जाओ और भी दूसरी दावतों में जाओ, लेकिन जो दावत जरूरी दावत है जिसको उलमा ने वाजिब तक कहा है वो है शादी का खाना। क्योंकि आया है हदीस में वमन लम युजिब फकद आसा अबल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वलीमे की दावत न कबूल करे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। इस हदीस से सही कौल ये है कि वलीमे की दावत, शादी के वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है, वाजिब है। तो जब वो बुलाए तो आप उसकी दावत कबूल कीजिए, लेकिन दो शर्तों के साथ। एक तो ये कि वलीमा हराम ना हो, वलीमा हराम ना हो, चोरी डकैती करता है, समझा कि डाकू है आया बड़ी सी दावत करके रखा हुआ है, मत जाओ उसी दावत, जानते हो कि उसकी रोजी हराम। और दूसरा कि वहां पर गए तो मुनकरात चल रहे हैं, कुछ हराम अशिया भी वहां पर खिलाई पिलाई जा रही है। नेता सब आए हुए, बड़े बड़े नेता सब आए हुए, तो उनके लिए वाइन चल रही है, पिग चल रहे हैं और कुछ चीजें चल रही है जी, बढ़ाना औरतें हैं, मौसीकी भी चल रही है, वगैरह वगैरह मामला है। और आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि आप जाकर के वहां उस मुनकर पर इनकार कर सके, उसको बंद करवा सके। तो वहां जाकर के हंगामा करने से और वहां का माहौल को बिगाड़ने से खुद बेवकूफ बनने से बेहतर है कि मालूम हो जाए कि वहां इस तरह का पूरा इंतजाम है, तो खुद को बचा लीजिए, आप जाइए ही मत। लेकिन अगर लगता है कि आप करीबी रिश्तेदार हैं, आप जाकर के उनको समझाएंगे, मना करेंगे और वो बाज आ जाते हैं, तो आपको जाना चाहिए इन काले मुनकर के लिए। बहरहाल तो ये समझ करके जाना है, हर कसो नाकस की दावत में भागते हुए चले जा रहे हैं, समझा कि नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर यह है कि साहब उसके लिए तकल्लुफ न हो, अखराजात बड़े न हो। अब मिसाल के तौर पर अब आप कहिएगा कि मौलवी साहब ने तो फतवा दिया या मसला बताया कि वलीमे की दावत कबूल करना वाजिब है, इसी को राजी किया, अब चलो जरा जांचते हैं, दरभंगा में मुझको वलीमे की दावत का कार्ड भेज दीजिएगा, तो हमारे लिए आपकी दावत का कबूल करना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि जितनी दावत आपकी खाने नहीं आवेंगे उससे 10 गुना नहीं 100,000 गुना हमको फ्लाइट का किराया लगेगा, तो अब हमारे लिए दावत आपकी वाजिब नहीं होगी। हम साफ लफ्जों में कह देते हैं, इसलिए हमको टेस्ट मत कीजिएगा। अपने शहर के जो लोग हैं, आपके जो करीब के लोग हैं, उनको अपने बेटे की शादियों में दावत दीजिएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वह इज़ा दआ का फअजिब, दावत कबूल कीजिए। तीसरी चीज है वह इज़स्तनसह का फनसह, आपसे खैर खाही चाहे, मशवरा चाहे, और आप जानते हो उस मामले से आपका कंसर्न हो, कपड़े की तिजारत करना चाहता है, बिजली की तिजारत करना चाहता है, कोई और धंधा करना चाहता है, और आपको उस धंधे के मुतालिक इल्म है, तो आप खैर खाही किए कीजिए कि जो अफजल और अकमल तरीका है, वो अफजल और अकमल तरीका उसको बताइए कि कैसे करना है। ये है खैर खाही। और अगर आप नहीं जानते हैं तो चुप रहिए, आफियत की राह। मेरे ख्याल से आप ऐसा कर लेते, अरे आपको आपके ख्याल से कर लें, आपको इसमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं और आप अपना ख्याल दे रहे। तो अगर आपसे पूछे और आप उसको बेहतर और अफजल मशवरा दे सकते हो जिस पर अमल करके उसको बेनिफिट होगा, तो आप दीजिए, नहीं तो खामोश लीजिए। वह इज़स्तनसह का फनसह। और उसके बाद फरमाया वह इज़ा अतसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, अगर कोई छींके और छींक करके अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब दो यरहमुकल्लाह से। शम्मित हो माने तशमीत कहते हैं, छींकने वाले के अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना, यरहमुकल्लाह से। इज़ा अतसा फहमिदल्लाह, छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तब यरहमुकल्लाह कहो। इसका मतलब है कि छींके और अल्हम्दुलिल्लाह न कहे या जी में कहे तो आपको क्या पड़ी है यरहमुकल्लाह कहने की, दुआ देने की उसको, जबकि आप जानते हैं कि वो मसला जानता है, पढ़ा लिखा आदमी है, समझ रहा है, भूल भी गया है, तो भूल गया तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। सब कुछ और नहीं भूलता है, अल्हम्दुलिल्लाह भूल गया जी। छींक आई तो पूरे बदन के अंदर एक जलजला बरपा हुआ जी, जो हवा रुकी हुई थी दिमाग में, नाक में, वो निकल गई, एक राहत महसूस कर रहा है, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर रहा है। इतनी जोर से जलजला आया था कि हाथ सिकुड़ जाता, ऐसे रख के किए हुआ था तो हाथ छटक जाता, इतना जलजला आया बदन में, लेकिन सारे आज़ा सलामत रहे छींकने के बाद। फिर भी तुमको अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं रहा, तो जाओ, याद नहीं रहा तो तुम यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, इस दुआ के तुम मुस्तहिक।
نہیں ہو. لیکن اگر آپ کو لگے کہ شاید یہ آدمی جاہل ہے, نہیں جانتا ہے, مزدور کی قسم کا آدمی ہے, نہیں پتا ہے اس کو, یا ڈیورٹ ہے, ابھی اسلام میں آیا, اس کو نہیں پتا کہ چیکریٹ کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے, تو اس طرح کے آدمی کے لیے خیر خواہی علماء نے بتائی ہے کہ آپ اس کو کہیے کہ میاں جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے, تب پھر وہ جب کہے الحمدللہ تو آپ کہیے یا رحمت اللہ. اور چوتھی چیز ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو. یہ بھی سنت ہے, لیکن بعض علماء نے کہا کہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ, ایک آدمی ہماری مسجد کا, مثال کے طور پر ایک آدمی ہماری مسجد کا نمازی ہے, 5 وقت مسجد میں رہتا ہے, 5 دن سے 7 دن سے نظر نہیں آ رہا ہے, گھر میں پڑا ہوا ہے, بیمار ہے, ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, معلوم ہوا کہ آپ کو بیمار ہے, کم سے کم 1 آدمی 2 آدمی 4 آدمی جا کر کے اس کی عیادت کرو. اس کو لگے کہ وہ کسی مسلم کمیونٹی میں رہتا ہے, جہاں لوگوں کو اس کی پرواہ ہے, تلاش ہے کہ نہیں. تو علماء نے کہا کہ اگر ایسی حالت ہے, کوئی بھی نہیں جا رہا ہے, تو کسی کو جانا چاہیے, فرض کفایہ ہے. لیکن وہ بیمار جو گھر میں ہو, باہر نہ نکلتا ہو, ہلکا سا درد وغیرہ ہے, نکل بھی رہا ہے, مارکیٹ میں بھی جا رہا ہے, مسجد میں بھی جا رہا ہے, اور پوچھا کیسی طبیعت, تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے, بخار چل رہا ہے, اچھا میں آتا ہوں آپ کی عیادت کے واسطے گھر, کہیں کو جاتے ہیں آپ عیادت کے واسطے گھر, وہ تو خود مسجد میں آ رہا ہے, سلام دعا تو یہی ہو رہی ہے, چائے پینے کے لیے جانا چاہتے ہیں, ملاقات ہو گئی مسجد میں, طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں چل رہی ہے, اچھا آتا ہوں, شام میں آتا ہوں نا, شام میں آتو کہیں کو آتو, وہ تو آ رہا ہے مسجد میں, بازار میں ملاقات ہو رہی ہے, السلام علیکم السلام, خیریت ہے, اللہ آپ کو شفا دے, ہو گیا. لیکن نہیں, گھر کو اس نے لازم پکڑ رکھا ہے, 2-4 دن سے بندہ نکل نہیں رہا ہے, معلوم ہوا کہ صاحب وہ بستر سے اٹھ نہیں رہا ہے, ڈاکٹر نے فریکچر ہو گیا ہے, ڈاکٹر نے کہا 15 دن تک ایسی ٹانگ اس کی ٹنگی رہے گی. اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ جائیے, اور اب جب جائیے تو اس سے اگر لگے کہ گفتگو کرنا پسند کرتا ہے تو گفتگو کیجیے. اگر اس کو لگے کہ آپ زیادہ دیر تک بیٹھیے, آپ کے بیٹھنے سے اس کو سکون ملے گا تو بیٹھیے, اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں بیمار بے چین ہے, پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس رہے, اس کے گھر والے بھی پسند نہیں کرتے, کچھ بیماروں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے, بدن کے اندر اس طرح کا راشا ہوتا ہے, چہرے بسورنے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی ہماری اس حالت کو دیکھے, یا گھر والے بھی نہیں پسند کرتے ہیں, حتیٰ کہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی عیادت کے واسطے آوے. تو جائیے, السلام علیکم کیا, دیکھا مریض کو, اللہ واسطہ ہو انشاءاللہ, دعا دیتے ہوئے نکل جائیے. لیکن مریض, ارے رکیے نا بھائی, کہاں اتنے دن کے بعد آپ آئے ہیں, 1 ہفتے سے پر ملاقات, یہ بیٹھی بات کی, بھائی چائے لاؤ بھائی, بیٹھ کے بات کریں. تو اگر ایسا مریض کو آپ کے ادھر ہونے سے کچھ دیر بیٹھنے سے اس کو آرام اور سکون ملتا ہے تو آپ بیٹھیے, باتیں کیجیے. نہیں, اگر آپ کو لگے کہ ہماری وجہ سے اس کو تھوڑی بے چینی ہو رہی ہے اور یہ آدمی اپنے کو الون ہونا چاہتا ہے, تو آپ کو ہوشیاری یہ کرنی چاہیے کہ قبل اس کے کہ گھر والے کہے چلا جائے, اٹھا جائے, اس سے پہلے ہی ذرا آپ تار لیجیے حالات کو اور کہیے کہ اجازت دیجیے, میں چلتا ہوں, اللہ تعالیٰ شفا دے آپ کے مریض کو. ٹھیک ہے, وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ. اور آخری 6ٹھی بات کہی گئی, اچھا غیر مسلم کی عیادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, ایسا ہے مسئلہ معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو اہل علم نے کہا ہے کہ اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہو, تھوڑا سافٹ کارنر رکھتا ہو مسلمانوں کے لیے, سمجھا کہ نہیں, تو اپنا اخلاق پیش کیجیے, جا کے اس کی خبر خیریت دیجیے, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی اور آئے اور آپ کے اخلاق سے وہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان یہودی بچے کی آپ نے عیادت کی اور اس پر اسلام پیش کیا, تو ایسا کر سکتے ہیں آپ, سمجھا کہ نہیں. اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائیے. تو جنازے کے پیچھے لگنا یہ بھی فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے, سمجھا کہ نہیں. جا کر کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں تو نماز پڑھ کر کے اگر لوٹے تو 1 قیرات لے کر لوٹے, اور تدفین کر کے لوٹے, مٹی ڈال کر کے لوٹے تو 2 قیرات لے کر لوٹے. حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی, جاتے تھے جنازہ پڑھ کے آ جاتے تھے, جاتے تھے جنازہ پڑھ کے آ جاتے تھے, سمجھا کہ نہیں. جب ان کو حدیث معلوم ہوئی کہ ارے مٹی دے کے لوٹنے کا 2 قیرات ہے, تو انہوں نے کہا کہ عزت ضیعنا قرارید کثیرہ, تب تو ہم نے بہت زیادہ قیرات کو حذف کر. قیرات ایک چھوٹا سا وزن ہے, چھوٹا سا, ایک جو کو 6 حصے میں اگر ڈیوائڈ کیجئے گا تو اس کا جو 6واں حصہ ہوگا نا, ایک ویٹ کے دانے کا, اس کے 6ویں حصے کو قیرات کہتے ہیں. اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن وہ انشاءاللہ قیامت کے دن احد پہاڑ ہو جائے گا. یہ قیراتین مثل الجبلین العظیمین, 2 بڑے پہاڑ ہو جائیں گے. تو اس لیے اہل توحید کو چاہیے کہ اہل توحید کی جنازے میں جائیں, اور اس جنازے میں اگر آدمی دور سے بھی آ رہا ہے, کئی دوسرے شہروں سے بھی آ رہا ہے, تو اس کو آنا چاہیے,
बीमार के यहाँ इयादत करे, जनाजे में वो हाजिर हो, उसके बाल बच्चों की ताजियत करे। लेकिन यहाँ भी शर्त है कि मुनकर ना हो। अब नेताजी मुसलमान बड़े हैं, जा रहे हैं, उनके पीछे मौसीकी बजाई जा रही है, गमजदा सैड म्यूजिक बजाई जा रही है, समझा कि नहीं, तोपों की सलामी दी जा रही है और न जाने क्या क्या रस्में हो रही हैं। आपके रिश्तेदार अकरबा हैं, उनके कान में अजान दी जा रही है जी, और उसमें रखा जा रहा है शजरा, पीरों का, बुजुर्गों का, बिदती आदमी है। ऐसे आदमी के जनाजे में मत जाइए। मुसलमान हो तो उसके जनाजे में जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और आपको तौफीक दे कि हम एक मुसलमान होने की हैसियत से अपने दूसरे मुसलमानों के हक को अदा करें। ये एक हदीस थी। दूसरी हदीस इंशाअल्लाह ताला जो मैंने पढ़ी थी वो अब आज तो नहीं रही, कल इंशाअल्लाह दूसरी और उसके साथ तीसरी भी आ जाएगी। चूंकि ये कदरे लंबी थी, जरा मौजू से आप हजरात को करीब भी करना था और मसाइल भी ज्यादा आ गए, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन इससे दिल बर्दाश्त नहीं होइएगा, इंशाअल्लाह 20 से 25 मिनट का ही दर्स लेंगे, क्योंकि हमको अपने अगले दर्स की भी तैयारी करनी है। ये नहीं है कि हम इस वक्त से लेकर के शाम तक आपके साथ बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे। हार्डली 20 से 25 मिनट का इंशाअल्लाह दर्स हुआ करेगा बिइज़्निल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।